वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला तीजा। रे जन उथारै दब्बिओ, सुत्या गई बिहाय। सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो, अंतर ना उपज्यो चाव। रे जन उथारै दब्बिओ, सुत्या गई बिहाय। सतगुर का शब्द सुन ना जाग्यो, अंतर ना उपज्यो चाव। शरीर जलों गुण बाहरा, जो गुर कार ना कमाए। जगत जलंदा डिठ में, हों मैं दूजे पाय। नानक गुर सरनाई उबरे, सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। शब्द रते हों मैं गई, शोभा बंती नार। फिर कै भाणे सदा चलै, तां बनिया सिंगार। सेज सुहावी सदा पिर रावै, हर बर पाया नार। ना हर मरै ना कदे दुख लागै, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रभ मेल लई, गुर कै हेत प्यार। पौड़ी जिन्ना गुर गुप्या अपना, ते नर बुरियारी। हर जियो तिनका दर्शन ना करूं, पाप सट हत्यारी। ओए घर घर फेरै कसुद मन, ज्यों धर कट नारी। वडभागी संगत मिले, गुरमुख सवारी। हर मेलो सतगुर दया कर, गुर को बलहारी।
ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੀ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ, ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਹਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ, ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨੁਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 651 ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੋਰਠ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੈ ਉਬੀ ਸੇਬ ਕਰੇ, यूं गुरमुख आप निवारी है जा राज सृष्ट का ले। सो साध संगत जीओ, ये पावन बचन जिन्हां दी विचार नाल सांझ करन वास्ते आपां सतगुरां दी हाजूरी विच इकत्तर होए हां। साध संग जो गुरु पातशाह जी ने इन्हां पावन बचनां दे विच स्पष्ट करके जीव नूं समझाया है। पातशाह जी दे पावन बचन हन, तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई, तरस पया मैं रहमत होई, सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन ठीवै हरिया। ये जेड़ा तन है, ये जेड़ा मन है, ये कदों आनंद प्राप्त करेगा, कदों खुशी मानेगा, जदों सचमुच गुरु पातशाह जी कृपा कर देन, तेरा कीता जा तो नाही मैनू जो कि तो, हे मेरे मालिक तेरे कीते है पर उपकारां दा मैं वखियान नहीं कर सकदा। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस प्योई, हे मेरे मालिक
ਨਿਰਗੁਣਹਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰੈ ਦਾਬਿਓ, ਸੁਤਿਆ ਗਈ ਬਿਹਾਇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰਹਿ ਦੱਬਿਓ, ਸੁਤਿਆਂ ਗਈ ਬਿਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਓ। ਮੋਹ ਰੂਪ ਉਥਾਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੈ ਭਾਈ। तेरी उम्र सुतियां ही गुजर गई है। फरीद साहब जी दे पावन बचन हैं। उठ फरीदा उजू सहाज, सुबह निवाज गुजार। जो सिर साई ना निवै, सो सिर कप उतार। हे मानुख, हे जीव, हे प्राणी, जेड़ा सिर अमृत वेले सतगुरां दे चरनां विच जा के नहीं झुकदा, उन्हां दा सिर ते इस तन तो ला दिता जावे। किड्डी वड्डी गल फरीद साहब फरमान करते समझा रहे हैं। बाणी का कथन आउंदा है, फरीदा उठ फरीदा उदू साज, सुबह निवाज गुजार। ये जिहड़ा अमृत वेला सानू बख्शिया है ना, पातशाह ने अमृत वेले उठण दा, अमृत वेले जागण दा कई लाभ हैं। सब तो पहला सूरज चढ़न तो पहला जो चौथा पैर बनता है, साध संग जो अमृत वेला पातशाह जी ने जपजी साहिब दे विच भी फरमान किया है। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक ए वै जानी है सब आपै सचियार। भाई अमृत वेले उठ के स्नान करके तू पातशाह निरंकार दे गुणा नाल जुड़ेगा। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार। तू उस मालिक दी वडियाई करेगा ते मालिक तेरे ते प्रसन्न होके तेरी जग दे विच शोभा करा देवेगा। ते इस पावन मुखवाग दे विच भी धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज समझा रहे हैं। रे धनु थारिया दब्बियो, सुतिया गई बिहाए। सतगुर का शब्द सुन ना जागियो, अंतर ना उपजियो चाओ। जेड़े जीव सुतियां पई अपनी उम्र गुजारते हैं, साध संग जो पातशाह जी फरमान करते हैं, तेरी सारी उम्र सुतियां ही गुजर गई है। सतगुर दा तू कदे शब्द सुन के ये तेरा मन कदे नहीं जागया, क्योंकि शब्द सुनिया नहीं ते सुन भी लिया तो सिर्फ कन्ना तिकर ही सीमित रखिया। असी ये साडा सुभाव बन गया है, असी कन्ना दा रस ही लैन। माफ करियो साध संगत जीओ, गुरु घर दे विच आउणे आ, सिर्फ कन्ना दा रस ही मान के वापस तुर जाने आ। हकीकत विच ते साडी अंदरली आत्मा नूं ये रस आउणा चाहीदा है। जदों अंदरली आत्मा हिरदे विच ये रस आ गया तो साध संग जो सतगुर पातशाह फरमान करते हैं, जदों ये रस हिरदे विच नाम जपण दा चाओ है तो साध संग जो फिर ये मन जिहड़ा है प्रभु दे चरनां नाल जुड़ जाएगा, प्रभु दे चरनां विच अर्पित हो जाएगा। एक मन एक चित हो जाएगा। नहीं तो साध संग जो बाणी दे विच अनेकां ही कथन आउंदे हैं। एक दिन सोवन होएगो लांबे गोंड पसार,
फिर उदों किसी ने तेनों उठाउणा नहीं। ते अज हर एक गुरु घर तेनों अमृत वेले हुक्का दिंदा है कि तू आ गुरु दे दर ते अमृत वेला संभाल। जिन्हां ने अमृत वेला संभाल लिया, अमृत वेला ते उस दे नाल नाल जो सानू हुक्म है, जे असी गुरु दा हुक्म मन लिया, साध संगत जो साडा जीवन सफला हो गया। शरीर जलों गुण बाहरा, जो गुर कार ना कमाए। जगत जलंदा डिठ में, होमै दूजे पाए। शरीर जलों गुण बाहरा, जो गुर कार ना कमाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, होमै बिचों जाए। साध संगत जो गुरु पातशाह जी कृपा कर देन, गुणा तो सखैण जेड़ा तेरा शरीर अंदरों अंदरी सड़ी जा रहा है, जो सतगुर दी दसी हुई कार नहीं करदा, इस तरह दा शरीर, इस तरह दा शरीर ते संसार मैं होमे विच ही माया दे मोह विच सड़दा वेखिया है। ये जिहड़ा शरीर है माया दे जाल विच फसिया रहिंदा है, होमां दी अगन दे विच सड़दा रहिंदा है। नानक गुर सरनाही उबरे, सच मन शब्द त्याए। सतगुर पातशाह जी फरमान करते हैं, नानक गुर सरनाई उबरे, सच मन शब्द त्याए। जेड़े जीव गुरु दी सरन विच आ जुड़ते हैं, वो एक मन एक चित हो के गुरु दा शब्द ध्यावना करते हैं, गुरु दा सिमरन करते हैं, परमात्मा दा नाम ध्याउंदे हैं। गुरु नाल जुड़ के ते उन्हां दा जिहड़ा मन है वो स्वच्छ बन जाता है। पातशाह जी फरमान करते हैं, ठाकुर तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। वहां पकड़ कड लीने अपने, वहां पकड़ कड लीने अपने, ग्रह अंधकूप ते माया। साध संगत जियो, ओ मेरा मालक वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी विच जे असी एक मन एक चित हो के सुरत नूं टिका के आ जाइए ते शब्द नाल अपना ध्यान एकाग्र करन दा यतन करिए, ते साध संग जो हकीकत है सच जान लियो। साडा जिहड़ा जीवन है ये धन ते ये धनता दे योग बन जाएगा। महला तीजा, शब्द रते हो मैं गई, शोभा बंती नार। फिर कै भाणे सदा चले, ता बनिया सिंगार। इत्थे गुरु पातशाह जी ये भी श्लोक सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी का उच्चारण किया है। भाई जिस दी होमा सतगुर दे शब्द विच रंगे जान नाल दूर हो जाती है, ओ जीव रूपी नारी शोभा बनती है। ओ नारी अपनी प्रभु पति दे हुक्म विच सदा तुरदी है। इस करके उसका सिंगार जिहड़ा कीता है वो सफल समझिया जाता है। ते सफल उस सिंगार नूं समझो। जिमें साध संगत जो संसारिक गल कर लीए, जे जीव इस्त्री सिंगार कर लवे ते उसदा पति उसते प्रसन्न ना होवे, ते साध संगत जो दुनिया उसनूं गलत आख दिंदी है।
जे पति कोल नहीं, वो इस्त्री सिंगार कर रही है तो संसार उस नूं गलत आखदा है। लेकिन इत्थे सतगुर पातशाह जी ने यह उदाहरण दे के सानू समझाया है, भाई जे तेरे हिरदे रूपी मन विच, हिरदे विच परमात्मा दा नाम नहीं, तू शरीर नूं जिन्ना मर्जी चंदन साबण अनेकां ही पदार्थ लाई जा, चंगे वस्त्र पाई जा, लेकिन तेरी जिहड़ी जीव अंदरली आत्मा है वो कदे भी परमात्मा दी खुशी प्राप्त नहीं कर सकती। सेज सुहावी सदा पिर रावै, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लगे, सदा सुहागण नार। सतगुर पातशाह जी इत्थे सानू समझा रहे हैं, जिस जीव इस्त्री ने प्रभु पति लभ लिया है, उस दे हिरदे रूपी सेजा ते सेज जिहड़ी है वो सुंदर है। क्यों? क्योंकि उसनू वो मालिक खसम वाहिगुरु प्राप्त हो गया है, क्योंकि उसनू पति सदा मिलिया होया है। वो इस्त्री सदा सुहाग वाली है। क्यों? उसदा पति कदे मरदा नहीं, इसलिए वो कदे दुखी नहीं हुंदी। सतगुर पातशाह जी सानू स्पष्ट करके समझा रहे हैं, लेकिन साडी समझ दे विच ते दुनियावी काम क्रोध लोभ मोह अहंकारां ने डेरे पाए हुए हैं। इस करके सानू गुरु की गल समझ नहीं आउंदी। नानक हर प्रभ मेल लई, गुर कै हेत प्यार। धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज समझा रहे, नानक हर प्रभ मेल लई, गुर कै हेत प्यार। जे गुरु कृपा कर दवे ते साध संग जो साडा मिलाप जिहड़ा है उस पूरे परमात्मा दे विच हो जाता है। सतगुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, हे नानक, इत्थे बड़े सतगुरु गुरु नानक पातशाह दे नाम की मोहर ला के समझान, गुरु दे प्यार विच उस दी बिरती होण करके प्रभु ने उस नूं अपने नाल मिला लिया है। जदों साडा मिलाप गुरु नाल हो गया तो यह भी सच है, असी परमात्मा नूं पा लवांगे। जे असी गुरु की गल ही ना सुनी, गुरु नाल मिलाप ही ना कीता, कदे गुरु कोल आके नहीं वेखिया, तो साध संग जो परमात्मा नूं फिर किवें पा सकते हैं। पौड़ी जिन्ना गुर गोपिया अपना, ते नर बुरियारी। हर जियो तिनका दर्शन ना करूं, पाप सट हत्यारी। साध संगत जियो, सतगुर पातशाह जी फरमान करते हैं, जिन्ना गुर गोपिया अपना, जो मनुख प्यारे सतगुरु की निंदिया करते हैं वो बहुत भैड़ियां जूना भोगते हैं, भाव भैड़े हैं। रब मेहर ही करे, हे भाई उन्हां दा दर्शन ना करो, वो बड़े ही पापी ते हत्यारे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हां दा दर्शन कीतियां साडा भी जीवन जिहड़ा है वो खराब हो गया, साडा भी जीवन खराब हो जाएगा। इहो जे जीवां दा दर्शन कीतियां साडे जीवन विच भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ओ घर घर फिरै कसुध मन, जो धार कट नारी। सतगुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, ओ घर घर फिरै कसुध मन, जो धार कट नारी।
मनो खोटे ਉਹ आदमी ਵਿਭਚਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੀ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ सतसंग प्राप्त हो गया तो सतसंग जो पातशाह फरमान करते हैं फिर उन्हां दी बिरती उन्हां दी सोच गुरमुखां वाली बन जाती है। वो सतसंग दे विच आके बाणी नूं विचारदे हैं सरवण करते हैं। जिवें साध संगत भी सतसंग जो बिन भागां तो प्राप्त नहीं हुंदी। बिन भागां सतसंग ना लभै बिन संगत मैल भरी जय जियो। ये भी चंगे कर्म होण ताइयों सानू साध संगत मिलती है, गुरु की हजूरी विच आउण दा मौका मिलता है। लेकिन उत्थे भी आके असी कुछ प्राप्त नहीं किया, फिर साडे माड़े ही कर्म हैं। हर मेलो सतगुर दया कर गुर को बलहारी। हर मेलो सतगुर दया कर गुर को बलहारी। गुरमुखां दी संगत विच ओ प्राणी बड़भागी मनुख सतगुर दी निवाजी हुई गुरमुखां दी संगत विच मिलदे हन। हे हरि मैं उन्हां तो सदके हाँ, सतगुरु तो मैं सदके कुर्बान बलिहार जाता हाँ। मेहर करके सतगुरु ने मैनू भी अपने चरणों नाल जोड़ लिया है। भावें इंज कह लीए कि गुरु ने कृपा कर दी, मैनू भी अपने नाल जोड़ लिया। सो साध संगत जो असी हर वेले एको ही एक अरदास करिए कि पातशाह तुसी साडे ते कृपा करो। जिमें बाणी दा कथन आउंदा है, कूप भरियो जैसे दादरा कुछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया विभ मोया किछ आरा पार ना सूझ। हे मेरे मालिक कृपा कर साडे मनां दे विच ते भाव दुनियावी वासनावां हन, विख दा भाव जहर भरिया होया। आप जी कृपा करोगे ते ये जिहड़ा विख है इहो अमृत बन जावेगा। आप जी दे चरनां नाल जुड़ के आप जी दे दर्शन कीतियां, आप जी दी बाणी नूं पढ़िया सुनिया ते बाणी ते पहरा देना सब तो वड्डी गल है। तां साडा जिहड़ा जीवन है ये मनुखा जन्म जिहड़ा मिलिया है ये सफला होवेगा। सो सतसंग जो आप जी ने अज दे पावन अमृत बचना दी विचार सरवण कीती है। विचारां करदियां बेनत भुलां गलतियां हो गईयां होणगीयां। गुरु अते गुरु दी साध संगत बख्शण योग है। साध संग जो किसी माई भाई दा कोई भी चंगा सुझाव होवे जो दास नाल आप जी सांझ करने चाहुंदे होवन ते साध संग जो आप जी अपने विचार दास नाल सांझ कर सकते हो जां चंगा सुझाव दास नूं दे सकते हो। दास दा ये इंडिया दा नंबर है 8750 10 63 75। इस नंबर ते दास नाल आप जी संपर्क कर सकते हो जां चकदे टीवी की वैबसाइट पर भी आप जी अपने सुझाव दे सकते हो जी। बुलाइए फतेह करिए रसना नूं पवित्र। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।